Hi everyone, welcome to Quantifiers. My name is Sahil. So GDPI का टाइम आ गया है and this is the time where most of the people make it or break it. I don't know if you know this or not, but आपकी अभी तक अगर आपको जो भी calls आई हैं या आने वाली है, this is just 50% surety of what you will be doing in the future. Your future depends upon how you are going to perform in the interview, how you are going to answer everything that is asked out there. In this video, I'm going to tell you that how you can ace every MBA interview and what are the most relevant questions you should be worried about. Right. So what we will be covering here? We will be covering why interviews, most common interview questions, current or static GK, make it break it, freshers versus experience, dress code and the art of storytelling. So ये कुछ हम कंटेंट को कवर करेंगे. सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाई इंटरव्यूज, आपकी उन्होंने एनालिटिकल माइंडसेट को तो चेक कर लिया थ्रू देयर दिस कैट एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका हो चुका है. नाउ दे वांट टू सी दैट वेदर यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन रियल टाइम प्रेशर और नॉट. आपके सामने बिठा के अगर मैं आपको कहूँ आप बिजनेस प्लान बनाओ, या आपके सामने बैठ के मैं कहूँ कि आप गेस एस्टिमेट करो, तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. आर यू अ गुड कैंडिडेट और अ गुड फिट फॉर देयर कॉलेज, whether what you visualize and what they visualize for their college meet or not. ये सब कुछ डिस्कस होता है आपके इंटरव्यू के थ्रू. तो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरव्यू, वहाँ पे आपको जज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. जैसे कुछ स्ट्रेस इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ लाइट इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ आपके अलग तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं. उन सबका लास्ट जो एक कॉमन मोटिव होता है वो यही होता है टू सी हाउ वेल यू परफॉर्म अंडर प्रेशर. दिस इज द ओनली थिंग दैट दे आर वरीड अबाउट. राइट नाउ when it comes to most common MBA PI questions, सबसे जो दो कॉमन क्वेश्चंस है जिससे आपका इंटरव्यू बनता है या बिगड़ता है, फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सेकंड इज व्हाई MBA. अगर आपके ये दो आंसर्स अच्छे हैं, आपने रट्टा नहीं मारा हुआ, हर कोई याद करता है, हर कोई रट्टा मारता है, बट इफ यू आर टेलिंग इट इन अ वे ऑफ स्टोरी, यू आर पुटिंग सम वॉइस एक्सप्रेशंस, यू आर डूइंग सम हैंड एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, देन एवरीथिंग इज वेरी वेरी सॉर्टेड ओवर हियर. ठीक है, तो ये हालांकि हमने इन्हीं की आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है दैट व्हाट आर योर करियर गोल्स, वेयर डू यू सी 5 year डाउन द लाइन, योरसेल्फ 5 year डाउन द लाइन, ग्रेटेस्ट वीकनेस, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, हाउ योर फ्रेंड्स डिफाइन यू, आपको MBA किस में करनी है, ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो इन्हीं दो पार्ट्स का, इन्हीं दो क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होते हैं. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो और दिस क्वेश्चन एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. एक और बात, a lot of kids do this, they go to YouTube and search how do we introduce yourself. I'll also make a video of giving you a basic idea of how you need to structure your answer, but what stories you need to tell, what made your personality like what you are today, what were those events that impacted your life, so on so forth. That is something you need to write down on your page. To write a resume or to make a good interview answer, you need to devote a day or two in order to write a good answer, write an impressive answer. Your first impression is last impression. That is a very important part over here. All right. There are two techniques that I tell everyone. That will help you in, revising everything that is mentioned over here or doing everything that is mentioned over here. The first technique is called mirror technique. Every day when you are ending your day, sit in front of a mirror and talk to yourself. Hi Sahil, how was your day? Hi Sahil, introduce yourself. Hi Sahil, why do you think you should be selected for this particular college? Hi Sahil, why do you think that you are a good fit for MBA? Hi Sahil, why do you think that you should be selected and the other candidate should not be selected? How can you answer that in a good way, in a diplomatic way? Alright, so all these things are very important when it comes to interviews. Now, I have given you the snapshot of this. नाउ करंट और स्टैटिक जीके, नॉर्मली पिछले 12 महीने में जो करंट अफेयर्स हुए हैं, नॉर्मली तो 6 महीने तक ही जाते हैं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, पिछले 12 महीने में जो भी आपके देश में मेजर करंट अफेयर्स हुए हैं एंड देन ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो मेजर अफेयर्स हुए हैं, करंट अफेयर्स हुए हैं, आपको उनको पढ़ना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर गोइंग टू डू एन MBA. व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? दे एक्सपेक्ट डेटा फ्रॉम यू. अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरिया की वॉर हो रही है, उसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या है, आप बोलते हो कि इकोनॉमी डाउन जाएगी, लॉन्ग राइज में स्टेक, स्टॉक मार्केट हो सकता है डाउन डिक्लाइन हो जाए, गोल्ड के प्राइसेस को ये हो जाए, बट डू यू हैव एनी डेटा, राइट? That can you provide that due to this the interest rate fell through this, due to this the GDP got affected by this much? Whatever you are going to tell us, effect on import export, there has to be some data associated with it. जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, you don't have to just throw stories. वो कोई भी बोल देगा. मैं किसी बाहर के बंदे से पूछूं कि आपने MBA क्यों करनी है, वो भी आंसर दे देगा, बट आपके पास कितना डेटा है उस न्यूज़ को लेके, उन करंट अफेयर्स को लेके, वो डिफाइन करेगा कि आप कितने काबिल हो उस चीज़ के लिए.
So when it comes to current or static GK, you have to majorly focus upon current affairs. There are some channels like Study IAS. वहाँ पे आप एक न्यूज़ को पकड़ के 10-12 जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं उनको पढ़ो and then form an opinion on yourself about the story. That will help you. उसके अलावा you also need to start reading editorials. वहाँ पे आपके पास अच्छे अच्छे ऑथर्स के ओपिनियंस होते हैं. You will need to understand that how you can give your opinion. अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है ओपिनियन की, दिस इज अ न्यूट्रल, दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज एक्सट्रीम राइट, आपका ओपिनियन कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे नहीं होना चाहिए. जो भी सेंटर है उससे थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए, सो दैट यू आर नॉट आप ऐसा नहीं लग रहा, आपकी ऐसी परसेप्शन नहीं आ रही दैट यू आर वेरी बायस्ड. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट. नाउ okay, now I say this to everyone in every of my interviews wherever I go. Everything is a sales process. When you are sitting on the table there and there are आपके सामने panelists हैं, you are going to sell yourself, you are going to sell your qualities, you are going to sell. One of the major things जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, they try to oversell themselves. खासकर वो लोग जिनके पास अभी let's say करियर में they are fresher, they have not done a lot. What do they try to do? They try to tell everything about themselves. कि मैं ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, that why am I a good candidate? No. Leave a little mystery behind. Articulate your answers well, and that is where you will improve over the period of time, and you will be able to tell good answers. Right? Dress code की अगर मैं बात करूँ, for men it should be a proper suit. Right? Do not wear very fancy colors, green, ये ऐसा नहीं. Wear some good suits. This is a very good attire that you can see. आपकी this is a very common question that I get from a lot of people. That can we keep beard or can we keep it trimmed or how do we do it? आपका MBA का interview है. It is a very important thing. Get clean shaved. Although it is a guideline that you can get your beard trimmed, but get clean shaved. That is a very common thing. Right? Wear a good suit. Do not wear a lot of fancy jewelry. कानों की बालियाँ हो गई, nose pins, everything. For guys, I am specially telling you, don't do that. Stay simple. आप एक क्लासी घड़ी पा सकते हो. Wear good formal shoes, well polished. Your nails should be well, grooming आपकी अच्छे से होनी चाहिए and you should be presentable. आप ये लगा लो कि आप एक अरेंज मैरिज के सेटअप में हो, आपका बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है, and then you have to go and impress everyone with your simplicity. That is something you should do. Right? तो ये सब हमने कुछ कॉमन गाइडलाइंस लिखी हुई हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू विमेन, राइट, यू कैन ऑब्वियसली वियर अ सूट लाइक मेन और यू कैन ऑल्सो वियर अ लॉन्ग स्कर्ट. ठीक है, नी लेंथ स्कर्ट एंड उसके साथ अपना आपका फॉर्मल अटायर. डू नॉट ट्राई एनी फ्लैशी क्लोथ्स और एनीथिंग. फ्लैशी when I say flashy, I mean any modern clothes and short skirts or something. Wear professional clothes, right? And you are going for an MBA interview. Do not again wear very flashy colors. Wear the colors which are very soothing to the eyes. This is something you should be focused on. Again, these are some of the guidelines जिसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं. Alright, the last is the art of storytelling. जैसा मैंने आपको बताया कि when you are selling yourself, you have to give them clues. When you are introducing yourself, you have to tell them some stories जिसके ऊपर वो वापस आएंगे आपसे पूछने के लिए. आपका इंटरव्यू दो तरीके से चल सकता है. पहला तरीका होता है आपके इंटरव्यू में कि आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हो. अगर आप अपने आंसर्स को एक अच्छे मोड़ पे, एक अच्छी एंडिंग नहीं दे रहे, यू विल बी एनकाउंटरिंग न्यू क्वेश्चंस एवरी मिनट. बट अगर आप अपने क्वेश्चंस को इस तरह एंड करते हो कि यू आर ऑलवेज लीविंग सम मिस्ट्री बिहाइंड देयर, यू आर ऑलवेज लीविंग सम थिंग टू आस्क, देन आपके क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में आएंगे. हम आपको आपके इंटरव्यूज प्रोसेस के दौरान, मॉक इंटरव्यूज के दौरान ये सब सिखाएंगे कि आपको आंसर्स कैसे आर्टिकुलेट करने हैं, कैसे क्या चीज़ें लिखनी है. राइट, ऑल दीज थिंग्स विल रियली रियली हेल्प यू. राइट, ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी. नाउ इन ऑर्डर टू असिस्ट यू वी हैव अ फ्यू मोर थिंग्स. ये हमारा जो GDPI का कोर्स है जिसको हम कह रहे हैं क्वांटिफाई एज लक्ष्य GDPI 2025, इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया हुआ है जिसमें कि आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के. IIM अहमदाबाद, बेंगलोर की कहाँ पे कैसा इंटरव्यू चलता है. राइट, उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आज इंटरव्यू क्वेश्चन में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन फॉर नॉन इंजीनियर्स, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. MBA डोमेन स्पेसिफिक कैप्सूल्स, IT के, फाइनेंस के, HR के, मार्केटिंग के, कंसल्टिंग के, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस, इन सब के अलग से आपके पास कंपोनेंट्स हैं. आपको करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स जिसको कि हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं या आपको शो होंगे सारे के सारे. राइट, SOPs कैसे लिखने हैं, VAT PI कैप्सूल्स जो डिफरेंट कॉलेजेस देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस वो अपना खुद का कंटेंट देते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कंपाइल करके यहाँ रखा हुआ है. सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन रेलिवेंट. कमिंग टू द एकेडमिक पार्ट,
आप अगर एक फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स के लिए एकेडमिक में कोई 2 सब्जेक्ट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 2 सब्जेक्ट्स, आपके फेवरेट्स पूछे जाते हैं कि विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट जिस पे आपको ग्रिल किया जाएगा बुरी तरह से, आपको वो चीज़ लेके चलनी है अपने साथ। 2 सब्जेक्ट्स, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, अगर आपका 1 साल तक का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपसे एकेडमिक्स पे पूछे जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर हैविंग 2.5 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तब आपसे एकेडमिक का कम पूछा जाता है, जॉब्स का ज़्यादा पूछा जाता है। योर प्रेशर सिचुएशंस, हाउ यू डू सी योरसेल्फ एज अ टीम लीडर, आपने जो पढ़ा था आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, ये चीज़ें आ जाती हैं। बट इफ़ यू आर समवन हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। तो ये सब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स से आप आई एम एग्री बिजनेस के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास हमने ये डोसियर्स बना के रखे हुए हैं। दीज आर द बुकलेट्स दैट विल हेल्प यू। आप जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपके पास ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 तरह के कोर्सेज हैं हमारे पास। पहला कोर्स है जिसके अंदर आपको सारी कंटेंट मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वैट की प्रैक्टिस होगी, जीडी की प्रैक्टिस होगी, एसओपी की प्रैक्टिस होगी, सब चेक होगा। इसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपीज़, राइट। एंड द सेकंड सेगमेंट जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज देना चाहते हैं, द कॉस्ट ऑफ दैट इज 3500 फॉर 5 इंटरव्यूज विद डिटेल्ड फीडबैक। तो ये आपकी ABM की अगर कॉल आई है तो इसमें आपके पास ये सारा कंटेंट है, एक्सपीरियंस है कि क्या क्या करा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, राइट, आपसे क्या अपकमिंग्स है। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे मिलना है। थ्रू आउट द कोर्स आपको हमारी तरफ से हैंड होल्डिंग एंड असिस्टेंस मिलेंगी, लेकिन इसको कैसे परफॉर्म करना है ये आपके इंटरव्यूज को देख के हम आपके आंसर्स को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करेंगे, राइट। आई विल नॉट इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल बी आंसरिंग देम एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा वी विल बी लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ मोर अपडेट्स ऑन यूट्यूब नाउ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी हाउ इट गोज फॉर यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर कोई भी डाउट है तो वी विल बी आंसरिंग दैट। द कोर्स विल स्टार्ट अराउंड क्रिसमस, सो इफ यू आर विलिंग टू एनरोल एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट।